So we are moving to the another physical method for the structural interpretation, and that technique is now called as a mass spectrometry. So here the word spectrometry is based on the utilization of the source which is non-EMR based now. That's why it is called as a metry. Okay, so that metry means where the source is not EMR. Your source is not from EMR. Okay, that's why it is called as a metry. And it is said to be the mass now. That means it is related with the molecular weight. This technique is related to the molecular weight now. So now in that case, the spectroscopy is classified in various ways now. Example, absorption spectroscopy, emission spectroscopy. Okay. Later on, we can also call the spectroscopy in terms of destructive and non-destructive type of the methods of the analysis. Okay. So here, mass is an example of mass spectrometry is basically the example of the destructive means what does it mean destructive means? So destructive is basically where we cannot recover the sample after the analyzing that analyzing that particular sample now. The sample is not recoverable. Okay. And this is not an example of absorption spectroscopy. Here, why? Because of what? We are not going to use that source from EMR. The most important advantages for this technique is we require very much little sample. We required very least, one can say the less amount of sample is required now to record that mass spectrum. Here, in terms of what 0.1 to 1 millimicron. So that is the sample range that is required for this analysis of your compound. So mass spectrometry have a lot of advantages. Okay, and even that also have the limitations. The limitation is first only the destructive one. You cannot record the sample. Okay, so your sample is completely destroyed when you record that mass spectrum. Another thing is that, and that's why it is called as a destructive type of analytical method. Okay. Now, during this analysis, now your sample should be in a gaseous state. Now, that is important condition. Your sample should be in the gaseous state. Only the vapor or gaseous state samples are going to be analyzed here, and that is the important condition for this analysis. Okay, so your sample should be in the vapor state now. If it is example in other state or in other phase, let's say example solid or liquid, then first we have to convert into the vapor state and then you can record that spectrum. Okay. So basically, if it is a solid, then first it converts into the liquid, or if liquid, it converts into the vapors now. That is the simple phenomena. So before recording that the spectrum, we have to first convert that sample into the vapor form. So that is the important condition. And as you know that particularly for organic chemistry or for the organic compound, so there are four principal techniques are there, or four techniques are there. Out of that, NMR is the principal technique. Then later on we have UV, IR, and lastly what mass. No one single technique give the 100% accurate result. Okay, so maybe the NMR also give the accurate result, no doubt at all. But if you record that if you have a compound and if you record all the four now, then your result will have more accurate compared to what the single take. That's why each and every technique is supporting to each other now. So let's say mass is also the example of supporting method. Okay, so mass is the example of supporting method of analysis, where uh, let's say what are the application of mass spectrometry? You can get the molecular weight now. You can get what the molecular weight of particular compound, and if you know the molecular weight, you can make the tentative skeleton. You can make what the tentative skeleton of your compound, like whether your molecule is saturated, unsaturated, whether it is cyclic or acyclic, aromatic, aliphatic, etc. So by using that molecular weight, we can have the tentative structures. So let's move on to the next part, that is the application of the your mass spectrometry. Uh, in terms of what application, the first one is the determination of molecular weight. Now, okay, so whatever compound is there, you can get the molecular weight using this technique. You can also, by using that molecular weight, we can make the molecular formula. Okay, that is determination of molecular formula. The most important application, that is the detection of heteroatom now, which is present in your sample. Let's say example, halogen is there, we have nitrogen is there, chlorine is there, phosphorus is there, etc., etc. Especially those have some isotopes. By using that mass spectrometry, you can make the tentative carbon skeleton now, whether it is straight chain or branch or cyclic or acyclic or aliphatic or the aromatic, etc.
Okay, that is one the important application one. And this mass spectrometry, which provides the segments, or one can say the fragments of your compound. Now, let's say example, your molecule have 120 as a mass number, 120 as a molecular weight. The molecular weight of your compound is 120. Now that mass spectrometry gives the fragments now, different fragments. Let's say example, the fragments of 15, fragments of what 105, fragments of 77, etc. etc. If you combine this fragment, you will get the answer is what 120. So basically, mass spectrometry provides the fragments, okay, using that fragmentation process now. And by using that, you can detect, or you can conclude, okay, or you can confirm that there is a presence of some groups now. Let's say example, the methyl group, the ethyl group, phenyl, or the toluene group, CO, or the acetyl group, then the benzoyl group, etc., nitro group, cyanide. Okay, so this type of what the groups can be known. Okay, now we can able to know using this mass spectrometry. So basically, what this technique is useful to get the molecular formulae as well as to get the tentative structures. So what is the principle behind this technique? We will discuss first. So as you know that your sample should be required in the gaseous form. So first let me clear that this mass spectrophotometer or the mass spectrometer is includes three important devices or the three important parts. The first one is called the sample handling system. The first one is called as a sample handling system. The second one is called as the ionization chamber. And the third one is called as a mass analyzer. These are the three important parts of the instrument. So what is the role of a SHS now? That is called sample handling system. In sample handling system, so there is a special type of arrangement is there in which your sample first converts or sample is going to vaporize. Whatever type of sample is there, that will be vaporized first. So that means there are some heating devices are there in SHS. Heating devices, and that use of the heating devices where we can convert your sample into the vapor phase now. And there is a system, okay, so there is a high pressure is there in SHS, so that results that gaseous molecules are sent to the next part now with a high speed. Okay, so the role of SHS is, in SHS there is a sample is there, we have to put the sample, whatever state of the sample is there, first it converts into the vapor form, and using the pressure system, so that will be sent to the next part, that is called ionization chamber. Now in ionization chamber, where we have source is there now, this is your source, and that the source, the source is what? Source provide the energy for the ionization. Source which provide the energy. Now the source is a tungsten filament. Now look at the position of the tungsten filament. This is, let's say example, this is what tungsten filament, and this is the this is the what, the gaseous sample which is coming from the SHS. Now look at the orientation of the your tungsten filament and your sample now, gaseous sample. So there is a perfect collision occurred. There is a what? Perfect collision is occurred between your the energetic radiations coming from the tungsten and your sample. So results in, so there is a perfect collision is going to happen. All your molecules which are coming here that are interacted with the your radiations which are come from the tungsten filament. And here ionization chamber is a hardcore part of your instrument now, where first ionization is happened and then fragmentation is going to take place now. So whatever fragments are formed in this chamber, in IC there are two processes are happened. One is what ionization, and second is a fragmentation, where breaking is take place now. And whatever ions are formed, that ions are next sent to the mass analyzer, where that mass analyzer is a part of an instrument where it separate out all the ions. It separate out all the ions which are coming from IC using their mass to charge ratio. And finally, that mass to charge ratio, all the ions of which are comes from the IC isolated by the mass analyzer, and finally you will get the spectrum. The spectrum is a two-dimensional graph where we can plot the, on one axis there is intensity, on another axis there is an m by z value. So m by z value means it is a mass to charge ratio. Z means it is the charge. So with respect to that, you will get the single line spectrum. Vertical lines you will get the this one. And these peaks are called as a fragment peak. These are called as a fragment peak, like this. Okay.
ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये आता है कि क्या ये ऐसे ही होता है या कुछ इसमें और भी कुछ है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पहले समझना होती है। पहले तो अपन बात करते हैं कि हमारा सैंपल जो है वो हमको वेपराइज फॉर्म में मिला है। लेट्स से कंसीडर दैट योर सैंपल इज इन द वेपर स्टेट। हमको मिल गया सैंपल जो है वो वेपर फॉर्म में मिल गया, वो ऐसे जिसने काम करा दिया उसका। अब क्वेश्चन है कि जो टंगस्टन फिलामेंट है वो कितनी एनर्जी देता होगा। और बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो आ रहा है आपके टंगस्टन फिलामेंट से, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हम जब इंटरेक्ट करते हैं सैंपल के साथ तो बेसिकली सैंपल में क्या होता होगा। अब एक सबसे पहले तो बात ये होती है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कौन से होते हैं ये? इवन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे। फिर पेयर के फॉर्म में होंगे मतलब कौन से फॉर्म में होंगे? आइदर बॉन्ड पेयर या तो फिर कौन से लोन पेयर। बॉन्ड पेयर के फिर से दो टाइप होते हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर तो हमेशा एसिड के फॉर्म में रहते हैं, राइट। मतलब जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरली होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इवन इलेक्ट्रॉन, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज अगर हमारा एम मतलब हमारा मॉलिक्यूल है, तो हम उस मॉलिक्यूल को ऐसे हम लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, एलिमेंट अगर हमने ले लिया तो एलिमेंट में जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। बट मॉलिक्यूल में भी ऐसा होता है क्या? इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी बॉन्डिंग में चले गए ना आपके साथ। तो मॉलिक्यूल्स में होते हैं तीन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन। एक होते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है पाई इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है आपका जिसको बोला जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल आपके पास, जैसे हमने इसके पहले आईआर में भी पढ़ा है कि सिंपल, या यूवी में पढ़ा है यूवी में कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कुछ ऐसे है जिसमें सिग्मा पाई है, या कुछ ऐसे है जिसमें सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे आयोनाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकलेगा कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो नॉन बॉन्डिंग का जो निकलने का टेंडेंसी है सबसे ज्यादा होता है, जल्दी निकल जाएगा क्योंकि वो फ्री है। सो जो मॉलिक्यूल लिया है हमने उसमें जनरली इवन इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं या इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं 70 इलेक्ट्रॉन होल्ड का, हम क्या डाल रहे हैं उसमें? रेडिएशन। बट 70 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा होता है। सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी अगर आपने इकट्ठा किए, सारे मतलब जितने आपके पास है सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर आपने इकट्ठा किए, तो आपको नियर अबाउट 0 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ही एनर्जी लगती है उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मतलब आयोनाइजेशन करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगती है? मतलब यहाँ से ऐसे 0 से लेके 20 ही लगती है। फिर ये 70 डालने का काम क्या है? 70 डालने का काम ये होता है कि उस मॉलिक्यूल को उसके फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रेकिंग करने के लिए आपको वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वहां पे लगती है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू द मोर एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आती है टंगस्टन से। फिर आप यहाँ पे पहली बात तो समझना ये है कि सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जनरली इवन इलेक्ट्रॉन में होते हैं, यानी कि दे ऑलवेज हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हम अभी क्या करने वाले हैं कि उसमें हम टंगस्टन जो फिलामेंट है उसका बम्बार्डमेंट करने वाले हैं। और जैसे बम्बार्डमेंट किया जाता है टंगस्टन का, वो क्या करता है? ऐसे बम्बार्ड करता है इसमें और ये इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके चले जाता है। और ये प्रोसेस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन। मॉलिक्यूल का क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक जाने की जो प्रोसेस है, क्या हो गया? हुआ तो आयोनाइजेशन बोल सकते, राइट। यस। ठीक है। तो फिर मतलब क्या किया हमने? हमने एक इलेक्ट्रॉन बीम लिया और सीधा सैंपल पे डाल दिया। और सैंपल पे डालने की वजह से क्या हो गया? आपका सैंपल का जो है वो आयोनाइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि लेट्स से एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम लिया है, या कोई एक आधा यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ले लेता है, या कोई एक आधा मॉलिक्यूल लेते हैं। मॉलिक्यूल से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मुझे ये मिला। अब मुझे बताइए इसमें क्या चीज हुआ? ये आपका क्या था? न्यूट्रल गैसेस एलिमेंट था, ठीक है, क्योंकि गैसेस के फॉर्म में होगा आपका। और यहाँ पे हमने जो यूज की है वो एनर्जी कितनी है? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट का मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ईआई लिखा जाता है। सो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चला गया, तो इसका मास मान लेते हैं आपका कितना है? एक्स अगर मास है इसका, तो आपके इस वाले मतलब आयोनाइज फॉर्म का मास कितना होगा? क्या हो जाएगा मास उसका? कम होगा, ज्यादा होगा? हमने क्या निकाला है? इलेक्ट्रॉन निकाला है इसमें से। क्या निकाला है इसमें से? और इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होता है? लेट्स से एग्जांपल, आई हैव द एग्जांपल ऑफ एसीटोन मॉलिक्यूल। कौन सा वाला मॉलिक्यूल लिया मैंने? एसीटोन। एसीटोन में कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब मैं 70 इलेक्ट्रॉन होल्ड का बीम डालता हूँ सबसे पहले क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि एसीटोन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है एसीटोन का? C3H6O। यहाँ पर भी उतना ही रहेगा।
अब बताइए इसका मास नंबर कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? कार्बन के 12, 36 हो गए, ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन के 6, कितना होता है? 58 आएगा। चलो जल्दी बता दिया। और अब हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, ठीक है। इसका चार्ज कितना है? एम बाई जेड अगर मैं निकालता हूँ, एम बाई जेड का मतलब क्या हो गया? 58/0, बराबर, पहले कंपाउंड। लेकिन जब मैं आयोनाइज करता हूँ तो अभी उसका मास कितना है? उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो मास नंबर कुछ कम होगा क्या? नहीं, मास नंबर, लेकिन उसमें एक एडिशन क्या हो गया, चार्ज आ गया, एक +1 का चार्ज आ गया, 58/1 हो जाएगा। यहाँ 58/0 था, यहाँ पे क्या हो गया, 58/1 हो गया। और इसलिए दोनों में क्या फर्क है, एसीटोन में और दूसरे वाले एसीटोन में क्या फर्क है? पहला जो एसीटोन है वो कौन है, वो कौन है? न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल है वो, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है मॉलिक्यूलर आयन, वो कौन है ये? इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर आयन, या उसको पेरेंट आयन भी बोल सकते हैं, यू कैन आल्सो कॉल्ड एज ए पेरेंट आयन। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाला इवन इलेक्ट्रॉन वाला है, दूसरे वाला जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है, समझे क्या? यस सर, बराबर है। तो मतलब सैंपल के साथ जब हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन करने के लिए क्या होता है, आपके पास किस टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉडी होगा तो पहले वहां से जाएगा, पाई अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद वहां से, और फिर आपका सिग्मा, ये ट्रेंड है, ठीक है। ये चलती है, डिपेंड करता है आपके पास मॉलिक्यूल कैसे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमने तो पहले कर दिया, तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत ही नहीं तुमको, हमको कितनी जरूरत है, 20 तक बहुत हो गया। बट जो बाकी की जो एनर्जी है वो यूज होती है कहाँ पे, क्लीवेज करने के लिए, यानी कि उसको फ्रेगमेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है सैंपल के ऊपर, गैसियस सैंपल के ऊपर। सैंपल बेसिकली होते हैं इवन इलेक्ट्रॉन वाले, लेकिन जैसे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब हो गया वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला। उसको हमने क्या क्या बोला, पेरेंट आयन, मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल कैटायन। रेडिकल कैटायन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका रेडिकल भी है, कैटायन भी। और हमेशा एक बात याद रखना, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में एक चीज कॉमन होती है, जो है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है, जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन है उस पे बाकी की एनर्जी लगा देंगे, और वो एनर्जी जो है उस मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंटेशन करना शुरू कर देगी। फ्रेगमेंटेशन करना मतलब उसको ब्रेक करना, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना। फिर फ्रेगमेंट कैसे बन सकते हैं, आपके पास कैटायन भी बनेंगे, हो सकता है आपके पास एनायन भी बनेंगे, हो सकता है आपके पास रेडिकल भी बनेंगे, हो सकता है आपके पास न्यूट्रल, ठीक है। मतलब इतने सारे आपके पास क्या बनते हैं, फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अब मेन बात तो देखो कि इनमें से सारे के सारे आयंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं आईसी में ही, बनते आईसी में ही, एब्जॉर्ब भी आईसी में किए जाते हैं, एक्सेप्ट कैटायन, एक्सेप्ट कैटायन। और वो जो कैटायन है आपका, वही आपका जाता है मास एनालाइजर में। तो जितने कैटायंस रहेंगे वही आपकी क्या हो जाएंगे, मास एनालाइजर में एंटर होंगे, और सबका जो डिफ्लेक्शन पाथ है, यानी कि जो बाहर निकलने का जो रेट है, वो अलग अलग रहेगा। और इसीलिए मैं इनको लिखता हूँ M1 लिखता हूँ, M2 लिखता हूँ, M3 लिखता हूँ। ये छोटे छोटे जो टुकड़े होके बाहर निकलेंगे, पीसेस होके बाहर निकलेंगे, और ये कलेक्टर के पास आते पहले, और कलेक्टर के पास आने के बाद फिर उसका एम्पलीफिकेशन होने के बाद देन लेट कन्वर्ट्स इनटू द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज योर मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहला पीक होगा मॉलिक्यूलर आयन का, जो भी उसका मास रहेगा वो। उसके बाद आपका M1 आएगा, M2 आएगा, M3 आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम इन सबको इकट्ठा करके जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से बना सकते, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, सबसे पहला काम है एसएचएस का, दूसरा काम है आईसी का, और तीसरा काम है आपका मास एनालाइजर का। मतलब मेन काम जो है वो आईसी का है, आयोनाइज करना और फ्रैगमेंट कन्वर्ट करना। और उसमें भी क्या है, सिर्फ कैटायन को वहां पे अलाउ करना है मास एनालाइजर तक जाने के लिए, बाकी सबको अब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब यहाँ पे लिखा है ये 70 मतलब कितना, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब नियर अबाउट होता है ये 1600 किलो कैलोरी पर मोल, 1600 किलो कैलोरी कितना पर मोल। और 1600 किलो इतनी लगती नहीं है, मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन के लिए कितनी लगती है, हार्डली हो गया अब 16 17 ईवी तक ही लगती है, 17 ईवी। रिमेनिंग जो है वो आपको लगेगी वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बेंजीन का एनालिसिस करने के लिए दिया। सो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C6H6,
मास नंबर कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 एंड 6 इंटू 1। कार्बन के 12 होते हैं, 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 72 एंड 1 इंटू 6 ये हो गया 6, मतलब हो गया आपका 78। अब 78 वाला बेंजीन है आपका और हमने उसको पहले इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट लगाया 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेंजीन में कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक तो सिग्मा है और एक पाई है, फिर किसी एक पाई में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर कैसे निकलता है वो, लुक एट दिस पाई इलेक्ट्रॉन। इस पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकालने की बजाय मैं ऐसे निकालता हूँ और यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बोलो क्या बच गया अभी आपके पास, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। अब बेंजीन से कुछ नहीं गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब क्या होगा कि जो m/z है वो हो गया 78/1, मतलब 78। तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा बेंजीन था और हमारा मॉलिक्यूलर आयन जो है वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। हाँ। अब लिखने का तरीका ऐसा नहीं है, आप पूरा बेंजीन बनाओ और ब्रैकेट बना के आप उसके ऊपर रेडिकल कैटायन लिखो, दिस इज आल्सो द सेम। ये काम होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन। अब इसके बाद का जो काम होता है वो बाकी की एनर्जी यहाँ पे लगती है, मतलब मान लेते हैं 17 इलेक्ट्रॉन होल्ड यानी एनर्जी यूज कर ली, रिमेनिंग जो है वो आप होगी फ्रैगमेंटेशन के लिए काम। फिर फ्रैगमेंटेशन होना मतलब आपको ये पता है क्लीवेज कितने टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हेटेरोलिसिस, दूसरा होता है आपका होमोलिसिस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया कि आपके पास जो बॉन्ड है, अभी जो आपके पास बॉन्ड है उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप हेटेरोलिसिस किस टाइप का करोगे, उसको बोलते हैं हेमी हेटेरोलिसिस। हेमी हेटेरो, हेमी का मतलब क्या है कि आप एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना वहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का क्लीवेज करना मतलब हेमी हेटेरोलिसिस। वैसे तो हमारे पास है हेटेरो है, होमो है, ओके। यस सर। तो अलग अलग फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे, जैसे बेंजीन से एक H चला गया तो C6H7 हो गया, C6H7 मतलब 77 का पीक आपको मिल रहा है, ये वाला। अब उसमें से मान लिया C2H2 निकाल दिया हमने बाहर, तो 51 का पीक आपको मिलता है। लाइकवाइज ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे पीक्स आपको मिलता है, बट ओवरऑल इसका जो प्रिंसिपल है वो ऐसा इसका प्रिंसिपल, ठीक है। यस सर। अब जैसा आपके सामने स्पेक्ट्रम दिया हुआ, दिस इज व्हाट परसेंटेज इंटेंसिटी एंड दिस इज व्हाट m/z वैल्यू। जो सबसे पहले आपका पीक रहेगा जिसका मास ज्यादा है, बेसिकली दिस इज ड्यू टू फ्रॉम योर मॉलिक्यूलर आयन, ये कहां से आ गया, और मॉलिक्यूलर आयन मतलब आपका कौन, पेरेंट आयन, मॉलिक्यूलर आयन मतलब कौन आपका पेरेंट आयन, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे पीक रहेंगे आपके, जो रहेंगे लेफ्ट साइड के पीक इधर वाले, ये सब पीक किसके होते हैं, उसी कंपाउंड के, क्या है ये, फ्रैगमेंट पीक। ये सब के सब क्या है, ये फ्रैगमेंट पीक। ये हमने जैसे लेट्स से एग्जांपल, अगर मैंने ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया A B C D E एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब इसको ब्रेकिंग करना है, मतलब क्या करना है यहाँ पे टेंटेटिव ऐसे ऐसे टाइप का क्लीवेज होगा यहाँ पे, तो आपको A अलग मिलेगा, B अलग मिलेगा, C D E, और ये सब के मास अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपके कंपाउंड का मास मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ सर। सो अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि जो सैंपल हमारा रहेगा, जो भी हमने सैंपल लिया है उस सैंपल को आपको इंटरेक्ट करना है किसके साथ में, हाई एनर्जेटिक बीम के साथ, ठीक है। नॉट विद द EMR, ये हमने पहले क्लियर कर दिया कि हमारा EMR इसमें सोर्स नहीं, और इसीलिए इसका नाम जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, ठीक है। यानी कि कोई एनर्जी लेवल में चेंज वगैरह, बाकी बाकी टेक्निक में क्या होता है, चेंज इन एनर्जी लेवल, ट्रांजिशन होगा एनर्जी लेवल, यहाँ पे वो कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है क्या, नहीं। यहाँ पे एक चीज कॉमन होती है कि आपका कोलिजन परफेक्ट होना चाहिए, मतलब जो टंगस्टन फिलामेंट कंटिन्यूअली आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन आपके कोलाइड होने चाहिए आपके इनकमिंग वेपर सैंपल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है, आपका कोलिजन हो रहा है, तो एनर्जी कितनी है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले क्या वो एनर्जी कहाँ रिलीज होती है, सो दैट एनर्जी यूटिलाइजेस फॉर द मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन। सबसे पहले जो कुछ अमाउंट की एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन में। अब वो मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन होता कहाँ से, लेकिन इसको हम बोलेंगे फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं क्या मॉलिक्यूल में, यस, ठीक है। फिर आप और क्वेश्चन आता है कि कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ये कैसे पता चलेगा हमको कि कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, जैसे हमने अभी यूवी स्पेक्ट्रम पढ़ा कार्बनिक कंपाउंड, इसमें नॉन बॉन्डिंग भी है, इसमें पाई भी है, इसमें सिग्मा भी है। तो ऐसे वाले केस में क्या होगा आपका, आपको हेमोडायग्राम बनेगी ऐसे वाले, ओके। So that's it. This is sigma. This is pi. This is non-bonding. This is what pi and this is what sigma star. ये आपके पास उस मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे क्या होता है
कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिग्मा भी प्रेजेंट है, पाई में प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा बैलेंस वाला मतलब सबसे ऊपर वाला ये हो गया होमो। और हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करते हैं, होमो लेवल से इलेक्ट्रॉन को उड़ा देते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन को उड़ा देंगे। ये एक्साइटेशन नहीं कर रहे हम, उसको डायरेक्ट निकाल के बाहर फेंक दे, क्योंकि ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम नहीं करता है, वो डायरेक्ट निकल निकल के बाहर से। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो अनपेड बन जाए, यानी कि रेडिकल कैटायन बने, ऐसा बने। So we can consider that type of what mechanism is going to happen. Okay. हाँ सर। अब उसके बाद जो है वही चीजें फिर मॉलिक्यूलर किसको बोलेंगे वगैरह वगैरह सब चीजें। फिर नेक्स्ट में काम क्या है, इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने का मतलब क्या है कि टू converts that your molecular ion into the different type of the fragments. Let's say example cation fragment, anionic fragment, radical cation, neutral, radical. These are called as a fragments. और हमने ये भी देखा है कि जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं आईसी में उनको आगे ढकेला जाता है, और स्पेशली ओनली कैटायन जो होते हैं वही आगे जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये सब आईसी का माल है। आईसी में कुछ ऐसा है जो सिर्फ पॉजिटिव को बाहर भेजता है, बाकी सबको अपने पास खींच के रखता है। ठीक है। और हमारे पास जो रेशियो है वो कैसा है, m/z का रेशियो। इस रेशियो के बेस पे हम उसको सबको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है। और सबके m/z अलग अलग रहेंगे, कोई भी एक जैसा नहीं रहेगा आपका। और सारे m/z आप एक जगह कंबाइन करो तो यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से हम जो है वो टेंटेटिव कंपाउंड की तरफ पहुंच सकते हैं। अब नो डाउट आपको कितने स्पीसीज मिल सकते हैं, हो सकता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाला मिले, हो सकता है डबली पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपली पॉजिटिव चार्ज, या क्वाड्रपली या मल्टीपली, ऐसा तो मिल सकता है। लेकिन इसमें से सिर्फ जो पॉजिटिव चार्ज वाला है अकेला, वही जो है वो मास एनालाइजर तक पहुंचता है, बाकी सब वो वहीं पे होता है। तो यहाँ पे दिया है आपको एक प्रिंसिपल छोटा सा, कि आपका ये मॉलिक्यूल है पहला सैंपल, जो किसके फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा। और इसके साथ हमने बम्बार्डमेंट की किसकी, आपके टंगस्टन फिलामेंट की या रेडिएशन की, एनर्जेटिक रेज की। और जिसको अपन बोला गया है इम्पैक्ट, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, जिसकी वजह से सबसे पहले आपका कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूलर आयन में। तो हम इसको अभी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन। इनको क्या बोलना है आपको, तो मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन के लिए आपको बहुत एनर्जी कम लगती है, लगभग 7 to 20। अब उसके बाद जो है ये मेन काम होता है आपका, इसको ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, समटाइम न्यूट्रल आल्सो। But the uniqueness of what mass the IC, it only sends the positive charge ions, single positive charge। और उस हिसाब से अपन जब यहाँ पे सारे के सारे रिजेक्ट हो गए, और ये यहाँ पे आपके रिकॉग्नाइज होंगे आगे, एंड दैट एनालाइजर विल एनालाइज, और जो एनालाइज करेगा वो आपको आगे मिलेगा। ठीक है। ऐसे बेंजीन का भी बार बार एग्जांपल हम लेते हैं, M कन्वर्ट्स इनटू द M रेडिकल केटायन एंड देन फ्रैगमेंट्स। अलग अलग आपको फ्रैगमेंट्स वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, सब नंबर का खेल है, देखो सारे नंबर का खेल है। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन कौन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, समटाइम सल्फर है, देन क्लोरीन है आपका, ब्रोमीन है। ठीक है, ये सबके मास नंबर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। कार्बन कितना है आपके पास, 12 वाला कार्बन एक प्रेजेंट है, एक जो है वो 13 वाला कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये है आपका। ठीक है, सल्फर भी आपके पास है। क्लोरीन की दो आइसोटोप है, एक 35 वाला, एक 37 वाला। ब्रोमीन की दो आइसोटोप है, 79 वाला, और एक ब्रोमीन होता है 81 वाला। और ये जो टेक्निक है आइसोटोप के ऊपर बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि आइसोटोप को आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ आप मास यूज करते हो। ठीक है, अब इन्हीं के जो पीक होते हैं ना बहुत यूनिक होते हैं, कुछ कुछ पीक तो बहुत यूनिक, जैसे 77 नंबर जो है स्पेशली किसके लिए है, C6H5 प्लस के लिए। 51 जो पीक है किसके लिए है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन का जो कैटायन है इसके लिए। ठीक है, लेट्स एग्जांपल CO का आ गया 28 का पीक, मतलब CO का। ठीक है, कई जगह पे 18 का पीक आपको दिख रहा है, 18 लॉस हो गया कई जगह पे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में वाटर चला गया, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर यहाँ से निकला, 18 का पीक मतलब लॉस हो गया उसमें से। तो आप आसानी से नंबर को मिला सकते हो, और बेसिकली इस टेक्निक में क्या करना है आपको, नंबर जो मिलाना है। आप देखो टोलिन का कितना बेस्ट एग्जाम्पल दिया, टोलिन का पहले क्या निकालो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आता है, C6H8। तो क्या करना है इसका, 92 का इसका अगर मास। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, पहले आप इसको ड्रॉ करो, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। अब इसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें है सिग्मा और पाई। आपको ये पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन निकाले पाई, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से चला गया, तो आपको क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर आयन मिला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन में मैं क्या करता हूँ, लेट्स एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैटायन लिखा, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये देखो क्या गड़बड़ क्या करता है,
इसमें से सबसे पहले आप एक हाइड्रोजन निकालो, इस CH2 को ऐसे लिखो और H को यहाँ पे लिखो, होमोलिसिस करो, होमोलिसिस करो उसका। यहाँ पे तो चार्ज है ही प्रेजेंट, यहाँ पे क्या हो गया, CH2 रेडिकल। अब इस रेडिकल को इसके साथ मिलाओ, क्या हो जाएगा। और अब ये जो कंपाउंड है आपका, ये क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन का एग्जांपल है। नाउ दिस 5 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी शिफ्ट हियर, ओके, एंड द रिंग इज गोइंग टू बी ओपन, रिंग इज गोइंग टू बी व्हाट, ओपन, ऐसे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, और ये आपको टोटल रिंग मिलेगी कितने मेंबर की। और हमने देखा है कि ये वाला कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, समझे कि क्या हुआ था 92, एम्बाइजेड मिला कितना हुआ 92, यहाँ पे एक का लॉस हो गया, कितना हुआ मास आपका 91, इसका भी मास कितना है 90, 91 है। अब देखो 91 के बाद क्या हो जाएगा, 91 के बाद आपको ये जो बॉन्ड है आपका, ये वाला और ये वाला, इस बॉन्ड को क्लीवेज करो, किस तरह से क्लीवेज करो, इसको करो होमोलिसिस करो, इसको यहाँ पे डालो, इसको यहाँ पे डालो, इसको यहाँ पे डालो, इसको यहाँ पे डालो, क्या निकलेगा बाहर उसमें से, देखो यहाँ पे एक रेडिकल हो गया और यहाँ पर एक रेडिकल हो गया, समझे, तो बाहर क्या निकला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैं क्या करता हूँ, ये और ये रेडिकल को मिला देता हूँ, ठीक है, तो क्या 5 मेंबर रिंग मिलेगी, फिर वापस से मैं वही करने जा रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा, पाएंगे, फिर एक CH2 CH डबल CH ट्रिपल बॉन्ड CH बाहर निकालो, और आपको ऐसे मिलेगा, लॉस ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब कितने का लॉस हो गया, C2, लॉस ऑफ C2 H मतलब 26। तो अब देखो ना, अब 91 में से 26 को निकालो बाहर, और यहाँ पर भी आप 26 को बाहर निकालो, और कैटायन वही रहेगा आपका। अब जैसे 91 से आप क्या लॉस कर सकते हैं, 91 से अगर हमने इस कंपाउंड, जनरली देखो 91 इज मोस्ट स्टेबल क्योंकि एरोमेटिक है, बट अगर हम उसको, अब एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, उसने CH ट्रिपल बॉन्ड CH को बाहर निकाल दिया, तो आपका पी कितने पे मिल रहा है, 91 में से 26 गए, कितने बचते हैं 65, मतलब इस कंपाउंड का जो है वो कितना है 65 है। फिर और मैंने उसमें से एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH निकाल दिया, तो उसका एम्बाइजर कितना हो गया, उसका हो गया 39। तो आपको कितने पिक्स मिले अभी तक, पहला रहेगा 92 का, जिसको हम क्लोराइन, उसके बाद का किसका रहेगा, हाँ, और देखो ये जो है ना, ये होता है परसेंटेज इंटेंसिटी, जो 0 से स्टार्ट होती है और 100 पे एंड होती है। तो जो सबसे स्टेबल पीक रहेगा ना, जो सबसे स्टेबल पीक रहेगा, यानी कि उसको हम बोलते हैं बेस पीक, मतलब ये जो 91 जो है, ये कौन है, बेसिक मतलब 91 जो है इस केस में बेस पीक है, तो फ्रैगमेंट आया नहीं है, ठीक है, सो 92 मतलब आपका मॉलिक्यूलर वेट है, फिर 91 65 39 ये सब के सब क्या है आपके, दीज आर द फ्रैगमेंट आयन, ओके। एक इलेक्ट्रॉन निकल के जो आपको बना है उसको अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन पैरा आयन, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, M रेडिकल M प्लस और A फ्लैट, या फिर आप उसको कैसे कर सकते हैं, P दिखा सकते हैं, है ना, आपके पास कई सारे वेज है उसको दिखाने के। और रेडिकल कैटायन या रेडिकल मॉलिक्यूलर आयन कब बनता है आपका, जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसके बाद वो बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि एलिमेंट्स को जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, वैसे मॉलिक्यूल को क्या होता है उसका, मॉलिक्यूलर आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, जिसको बोलते हैं अपन आईपी, मॉलिक्यूल। और आईपी किसको कितनी लगी डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूल कैसा, अगर आपके मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो आईपी कम हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन है तो आईपी थोड़ी बढ़ेगी, और सिग्मा ही है तो आईपी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। और भी एक चीज मैंने बताई आपको कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, दे आर इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल की आईपी की रेंज कितनी है 7 to 15, 7 to 15 क्या है, मतलब जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं देखो उनको नियर अबाउट इतनी एनर्जी लगती है 80% मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
हो रही है। राइट, मतलब हमको 7 से 15 जो है वो सिर्फ उसको लगती है, और बाकी जो एनर्जी लगेगी वो आपको कहाँ पे लगेगी, वो यानी कि 7 से 15 आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगती है, इट इज सफिशिएंट, बट क्लीवेज करने के लिए सफिशिएंट नहीं, क्लीवेज अगर करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, तो ज्यादा एनर्जी आपको लगती है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो मेन प्रोसेस आपकी यहाँ पे दी है, ये मेन प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयनाइजेशन, वेयर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इनटू ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर मेजॉरिटी ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वहाँ से आप उसको 7 से 15 इलेक्ट्रॉन होल डाल देंगे तो मिलेगा, रेडिकल आयन नहीं मिलेगा, वहाँ पे केटन मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं अपन, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस है बहुत सारा। अब वही बात आती है, मॉलिक्यूल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिग्मा हो सकते हैं, पाई हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग हो सकते हैं। तो हमने लिया विनिल अल्कोहल, विनिल अल्कोहल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, अब इसमें हेटेरो एटम भी आ गया, पाई बॉन्ड भी आ गया, सिग्मा बॉन्ड भी आ गया। तो अब आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि आप जब एनर्जी लगाएंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, तो IP ऑर्डर हमारे पास प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा को लगती है, फिर पाई को, फिर कम कम होती जाती है किसके लिए, नॉन बॉन्डिंग के लिए, ऐसे। और हमेशा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही ऑर्डर से होना चाहिए, पहले नॉन बॉन्डिंग है तो फिर पाई और फिर सिग्मा, ठीक है। अगर मान लेते कि पाई है नहीं, सिग्मा नॉन नॉन बॉन्डिंग है नहीं, सिग्मा ये तो सिग्मा से निकाल, अब जैसे एनिलीन एग्जांपल, तो आपको नाइट्रोजन से निकालने पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बात। अगर आपके पास मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो फिर लेट्स एग्जांपल हाइड्रोकार्बन में मीथेन ले लिया मैंने, तो आप CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दैट इज फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, और जो भी बनने वाला मॉलिक्यूल आपका वो मॉलिक्यूलर आयन आपका रहेगा, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा बड़ा ले लिया हमने, जिसमें CC भी प्रेजेंट है, CH भी प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में आप CC को प्रिफर करना कंपेयर टू CH, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, पास हाइड्रोकार्बन और उसमें CH दोनों प्रेजेंट है, तो इन दैट केस वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन CC नॉट फ्रॉम CH, दिस इज प्रिफर्ड रूट, ओके, रिमेंबर दिस। जहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन रहा ऐसा, तो आपको ये करना है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है लेकिन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसे केसेस में जो टर्मिनल वाला जो CC बॉन्ड होता है उसको प्रेफरेंस देना है, कौन सा वाला, टर्मिनल प्रेफरेंस आपको देना। अब मान लेते हैं आपके पास अब वैलेंस वाला है, तो फिर क्या करोगे, अब ऐसे केसेस में जहाँ पे ब्रांच होती है ना, तो ब्रांचिंग वाला वहां से आपको निकालना है, ब्रांचिंग वाला, तो इस टाइप का सिस्टम आपको बनाना है कि जो आपका ब्रांचिंग वाला पहले आपका आयनाइज हुआ, ठीक है। आपके पास अगर एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, फ्रॉम 3 मेंबर 8 मेंबर कोई भी ले सकते हैं, ऐसे वाले कंपाउंड, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी CC बॉन्ड आप ब्रेक कर देना, ठीक है, कोई भी एक CC बॉन्ड आपने ब्रेक कर देना, ओके, ऐसे वाले केस। लेकिन अगर इस पे का सब्स्टिट्यूएंट अगर आ गया, तो फिर जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो वाले बॉन्ड को आपको ब्रेक करना, ठीक है। तो छोटे छोटे रूल है, आपको सब इसमें वन बाय वन आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब हो गया आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन के, अब आपका जहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, फिर अनसैचुरेशन आ गया मतलब पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, और आपका आ गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन, फिर पाई वाले को पहले उड़ाना है आपको कंपेयर टू सिग्मा, तो ऐसे केसेस में तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं आपके पास, सीधा सीधा जहाँ पाई बॉन्ड है वहां से उठाओ और उसको आगे बढ़ो, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। फिर आपके पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सॉरी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आपके पास है, अलिसाइक्लिक है ना, साइक्लिक है, आप वहाँ पे कई सारे एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं, बट यू हैव टू नीड मोर प्रैक्टिस ऑन इट। अब थर्ड एग्जांपल जो है आपका, जिसमें नॉन बाइंडिंग भी है, पाई भी प्रेजेंट है और सिग्मा भी प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में ऑप्शन आपके पास एक ही है, ये वाला, बेस्ट एग्जांपल इसका कार्बन या हेटेरोएटम वाला मॉलिक्यूल। हाँ नहीं, पहली कैटेगरी हमारी क्या है, इसमें पाई नहीं है, ये वाले मॉलिक्यूल की क्या नहीं है, पाई नहीं, मतलब हेटेरोएटम सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे केसेस में जैसे अल्कोहल है, अमाइन है आपके पास, देन वी हैव ईथर, द अल्किल हैलाइड, लाइक द अल्कोहल्स, ओके, या क्लोरो कंपाउंड्स, ब्रोमो कंपाउंड, हेटेरोएटम मॉलिक्यूल यहाँ ले सकते हैं, तो वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब एक तीसरी कैटेगरी है जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो वहां से आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर से निकालना है, नॉन बाइंडिंग से निकालना है, टू गेट द मॉलिक्यूलर आयन, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड वी आर डिफरेंट एग्जांपल्स, वी आर पहला एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है ना, ट्रिपली बॉन्डेड के साथ आपको OH लगा हुआ है, तो OH से निकालो। यहाँ पे आप देखो SH भी है, NH भी है, तो आप कहाँ से निकालोगे इलेक्ट्रॉन, S से निकालोगे, N से निकालोगे, ये कौन बताएगा,
तो कैसे हो पाएगी? क्यों? हम ऐसे ही क्यों नहीं पाते? अगर नॉन बॉन्डेड, आपके पास दो टाइप के नॉन बॉन्डेड है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है, या नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब तो देखना पड़ेगा ना कि जो जितना लेस इलेक्ट्रॉन ऊपर इलेक्ट्रॉन दे देगा पहले अपना, ठीक है? ऑक्सीजन भी है, NH भी है, तो ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब वो अपने पास अच्छे से इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना, वो क्यों देगा जल्दी? तो ये वाला देगा पहले, ठीक है? और आप ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स के आप M/Z जो है वो सब बना सकते हैं, इन सब कंपाउंड, ठीक है? So write down the example and try to find the molecular ion, ठीक है? हाँ सर। फ्यूरान ले लो, pyridine ले लो, टेट्राहाइड्रो डिफ्यूरान ले लो, ग्लिसरॉल ले लो, एसिटोफिनोन ले लो, ओके? देन आप साइनोबेंजीन ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, PH3 ले सकते हैं आप, देन PI3, SiH4, NF3, इवन मैग्नीशियम आल्सो, राइट? सो ये सब जो है आपके, ये कौन है? मॉलिक्यूलर आयन बना सकते हैं, इवन सोडियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, pyridine, दिस इज व्हाट पायरीन, ओके? 4 member 4 benzyl ring,